Well, it's Sunday, and only corporate employees know how weekends is important to them. So this rant is going to be very long, to be sure. And as a corporate employee, जो मेरे corporate employee viewers है, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ. So let's figure it out together. I have been working in the corporate sector from the last 2 years, and it has been amazing. Obviously, I've been learning and growing throughout, and I see myself working in this sector for the next 5, 6 years or 10 years. I don't know. By God grace, if AI don't replace my job, I will love to work in the corporate sector. But yes, after working and giving a certain amount of time, it's also important to understand that you are not only giving yourself mentally, but you are also involving yourself physically, emotionally. And there where we all fail, we don't realize that the stress or the anxiousness we are having because of the work pressure or anything, it somehow or other is hampering our body, is hampering our emotions and our overall health. So coming back to my journey, I joined corporate sector in 2023 just after my graduation. So my graduation was of 3 years, and I did my economics honors with that 3 years duration. And while I was doing my graduation in the first year, I also started a small bakery businesses in my hometown. If you guys don't know, I introduced that in my first video that I have a small bakery business, and that bakery business is also it is because I love food and I'm a foodie and I loved exploring the cakes. So I started a business in my hometown, and by God grace, it's still running and is doing fine. So yes, when I was doing my graduation, I was also running a small bakery business, and at the same time, I was doing gym. I was going to the gym just as time pass, or just to maybe to look good, because at that age, all I was concerned was about looking good. And I'm not yet that old, but maybe I have matured enough. Like I have figured some things. Like yes, अब तुम बच्ची नहीं रही कि तुम जो चाहो वो खा लोगी, एंड कुछ भी हो जाएगा, तुम्हारा तबीयत खराब नहीं होगा, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्वाइन करने के बाद पता चल गया कि हेल्थ का ध्यान रखना कितना इम्पोर्टेंट है. बिकॉज हम इतना मेहनत करके पैसा कमाते हैं, अगर अल्टीमेटली वो पैसा हमारी ही हेल्थ पे चला जाएगा तो कुछ फायदा नहीं है वो पैसा कमाने का. अब मैं इतना ज्ञान आपको दे रही हूँ, मैंने अभी तक होने जैसा काम नहीं किया, बट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड it on my own, and it took me a time, it took me a while to understand all these things. But yes, देर आए दुरुस्त आए, है ना हमारे एक मुहावरा. तो आई होप आई एम नॉट सेइंग दैट मुहावरा कि आप पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग देखे. तो अभी भी आई हैव टाइम, आई हैव ample of time to fix my routine, to fix my habits, to fix myself, to fix my life overall. So at that time when I was doing gym, it was all because of passion, or I loved doing the gym. And तब मैं gym करती थी, सुबह जाती थी, consistently करती थी. So I lost weight, so I came to 70 kilos, and I literally look good. And मैंने अपने आप को पूरा लीन तो कभी देखा नहीं है, क्योंकि मैं बचपन से ही वो तो हेल्दी चबी वाली लड़की बच्ची होती है, मैं वो वैसी ही हूँ. तो हमेशा से मेरे मम्मी पापा मेरे को जो मन करता है मैं खाती हूँ, क्योंकि मैं अपने घर की एकलौती संतान हूँ. यस, आई एम सिंगल चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स. तो मैंने जो मांगा है, जो भी मेरे डिमांड्स है, वो हमेशा मेरे पूरे किए गए हैं. एंड खाना एक ऐसा चीज़ है जो मेरे घर में कभी भी मेरे को कभी भी किसी के लिए कुछ खिलौने के लिए मना कर देंगे, बट खाने के लिए मना नहीं करेंगे. So इस वजह से I was a very chubby and a very healthy girl. But when I went to college and certain new things happened, so obviously थोड़ा weight lose करना, and वो सब होता है ना हमारा न्यू adolescence वाला फेज. adolescence से जब जस्ट खत्म होने के बाद, जब वो adulthood में, जस्ट अर्ली adulthood वाला फेज. तो अभी भी अर्ली adulthood में ही हूँ मैं, बट वो वाला फेज थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि तब कॉलेज था, कुछ टेंशन नहीं था हमें, मतलब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थे, बस हम पढ़ते थे, एंड बस वही होता था. तो यस, तो मैं तब जाके जिम करके आती थी एंड मैं सो जाती थी. तो तभी मुझे कुछ पता नहीं चला कि हाँ ठीक है, जिम भी कर रही हूँ, इतना क्या है, वेट लूज कर दूंगी, 1-2 महीने में हो जाएगा, क्योंकि मैंने लिटरली 3 months में मेरा वेट लूज हुआ था. एंड I was at a very sound health back then in 2023 before joining the sector. So when my graduation was over in 2023, I got the job from my campus placement. So I joined in that same year itself, and from then till now, the drastic change happened in my body, in my emotions, and everything was so new to me that I feel
क्या ही हो गया तो जो होता है ना, दिन बदल गए, जज्बात बदल गए, वैसे काइंड ऑफ हो गया। तो इनिशियल फर्स्ट ईयर में मैं 2 कंपनी चेंज कर चुकी हूँ 2 इयर्स में। मतलब सेकंड कंपनी इज़ माय प्रेजेंट कंपनी। तो फर्स्ट कंपनी जो था, इट इज़ अ वेरी हेक्टिक एंड अ वेरी यू नो target oriented sector, and you must be knowing what I'm talking about. So I was in the banking sector in my first job, and that was so hectic. Trust me, I was in the sales position and I was not at all aware कि ये भाई क्या चल रहा है। भाई मेरे को कभी किसी ने कुछ बोला नहीं है एंड ये मेरे मेरे का सब चढ़ रहा है। आई वाज लाइक, मैं सबसे छोटी थी उधर, तो मेरे को वो वाला ट्रांजिशन अभी तक मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ कि हुआ क्या मेरे साथ भाई। एंड उसके वजह से इतने सारे रॉ इमोशंस, इतना गुस्सा वो अडल्टहुड वाला कि कैसे कोई मेरे को चिल्ला दे रहा है, या फिर कुछ ये टास्क कंप्लीट करो, वो करो, ये करना ही है। तो उस वजह से इमोशनल ईटिंग और स्ट्रेस ईटिंग मेरा इतना बढ़ गया उस 1 ईयर में कि मेरे जस्ट मैं जहाँ पे मेरा ऑफिस था उसके साइड में एक सुपरमार्केट का शॉप था। तो जब भी मेरे को अगर कोई डांट देता था या फिर कोई मेरे पे गुस्सा हो जाता तो मैं जाके उधर आइदर कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, चॉकलेट्स कुछ भी खाती थी। मेरे को अपना मूड ठीक करना था। आई वाज लाइक, भाई मेरे को ये क्यों डांट रहे हैं, मेरे को मेरे मम्मी पापा भी आज तक नहीं डांटे, ये लोग क्यों डांट रहे हैं मेरे को। बट एनीवेज दैट इज अ पार्ट ऑफ adulthood which I gradually understood. but yes, जो भी young viewers, if you're watching my video, don't get panic. This is life and this is being a part of adulthood. So it's all about accepting and understanding that you are going through some transition, because college से corporate sector में आने का transition जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा drastic change होता है। मतलब अभी आधा चीज़ हमें कुछ पता नहीं होता है, हर चीज़ हमारे लिए न्यू होता है। तो obviously कुछ चीज़ें धीरे धीरे इवेंचुअली यू विल फिगर इट आउट। एंड इसीलिए अगर तुम्हारे सराउंडिंग्स लाइक एट प्रेजेंट एट इन विच कंपनी आई एम करेंटली, it's a very good, like the culture is good and the environment is good, so I'm able to flourish and nourish myself, and I'm able to understand, yes, everything can be managed. So yes, it's important that where you're working, and obviously we cannot guarantee that from the first job or the second job you'll be getting a very good sector and it won't be demanding from you, because if they are paying you money they will be demanding from you. Obviously that is a basic necessity, any company that under which you will be working. So yes, that is a thing, and eventually you will understand taking the pressure. And by the time, why this guilt trap got so much now, because I could understand that if I am going to be in this sector for like the next 5 6 years 10 years, then I cannot be in this body or in this health condition where I'm unable to take the stairs, when I'm traveling somewhere I'm unable to walk for a few distances. So this is not healthy. And if I am struggling at 25 20, I'm at 24, I'm struggling now, so when I'll be at 34, what will be तब का कंडीशन क्या होगा। तो ये सोच के मेरे माइंड में बहुत आया था कि, एंड मेरे घर में भी एंड मेरे दोस्त लोग भी, कि लाइक नो, दिस इज द टाइम वी शुड बी फिक्सिंग, वी कैन नॉट जस्ट गिव एक्सक्यूजेस दैट की जॉब है तो हम इसलिए नहीं खा रहे, कि खाना खा दे रहे, कि स्ट्रेस ईटिंग कर रहे हैं, वो सब होगा। मैं अभी भी कर रही हूँ, एंड आई एम स्टिल ट्राइंग टू अवॉइड एज much as possible. So what I am following right now is like something which I want to follow my entire life, क्योंकि ऐसा मैंने ट्राई किया है 2 सालों में कि मैं जिम सब्सक्रिप्शन ली हूँ 3 महीने का 1 महीने का, एंड मेरा बॉडी सपोर्ट ही नहीं करता था कि मैं जाके जिम करूँ। एंड होता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो जॉब के बाद जाके या फिर जॉब से पहले जाके जिम करते हैं या फिर कुछ शॉर्ट ऑफ एक्सरसाइजेस करते हैं। बट इफ लाइक कुछ चीज़ें तुम फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो एंड इट्स टेकिंग टाइम, इट्स ओके। एटलीस्ट तुम्हारे दिमाग में वो आ रहा है कि तुम नहीं कर पा रहे हो एंड यू नीड टू फाइंड सम सोल्यूशन टू इट, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। सो अभी मैं जैसे कि मैंने भी सोचा, मेरे माइंड में भी बहुत चल रहा है कि भाई मैं चैलेंज ले ली हूँ तो आई शुड बी जॉइनिंग द जिम, एंड जिम जाने से थोड़ा जल्दी मेरा वेट लॉस होगा एंड इट विल बी विजिबल। बट यही चीज़ है ना कि मैं जिम जाके 1 महीने में 2 महीने में भी मेरा 5 किलो 6 किलो कम तो हो जाएगा। बट अगर मैं वो ड्रेन हो गई एंड मैं फिर से वो कंटिन्यू नहीं कर पाई, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ली एंड फिर 2 दिन गई 3 दिन गई एंड फिर सो गई। सो व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन नाउ इज लाइक, फर्स्ट थिंग इज वेकिंग अप अर्ली। जो भी शिफ्ट हो उससे 3-4 घंटे पहले उठना इज नेसेसरी, ताकि तुम उस डे के लिए भी प्रिपेयर कर सको एंड एट द सेम टाइम तुम्हारे जो डेली मॉर्निंग रूटीन है वो तुम आराम से फॉलो कर सको। क्योंकि मैं ऐसा कर रही हूँ कि मैं जाने से पहले अभी 1 घंटा पहले उठ रही हूँ एंड आई एम जस्ट रशिंग एंड डूइंग ऑल माई चोर्स एंड रशिंग टू द ऑफिस। सो that I want to fix first, that I want to wake up early in the morning, so that once I start waking up in the morning I can gradually start doing some sort of exercises and morning routines which I will eventually it will help in the weight loss journey. Second, ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स कुछ ऐसे टुक टुक मुक मुक कुछ छोटा मोटा कुछ खाने का मन करता है कि लाइक काम करते वक्त कुछ हमारा ऐसा हमें एक्टिव रखने के लिए तो एक्सरसाइज ज़रूरी है। बट काम करते वक्त एक्टिव रखने के लिए हम बहुत लोग खाने का जरिया लेते हैं। तो वो सब जब भी आप कर रहे हो
क्योंकि भूख तो लगेगा, आप 12-13 घंटे एक जगह पे रह रहे हो एंड काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली भूख तो लगेगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू अवॉइड द अनहेल्दी स्टफ्स विद द हेल्दी स्टफ्स। तो आप मेरे शॉर्ट्स में भी देख रहे होंगे कि मैं बहुत सारे ब्रांड्स के स्नैक्स ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि रिकमेंड कर रहे हैं कि वो हेल्दी है एंड इज मोर बेटर देन द पैक्ड गुड्स विच आर अनहेल्दी। सो या फिर आप अपने घर से कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह, फ्रूट ड्राई फ्रूट्स या फिर कुछ भी चीज़ें जो आपको एक्टिव रखने में हेल्प करेगा वो आप लेके जा सकते हो, ताकि आप वहाँ जाके फिर कैंटीन में जाके कुछ ना खा लो या फिर कहीं से जाके चिप्स वगैरह। क्योंकि आजकल तो इंस्टामार्ट ब्लिंकिट हर जगह पे है। इंस्टामार्ट ब्लिंकिट की वजह से आधे लोग मतलब कहीं जाते भी नहीं है, उनके पास आ जाता है एंड उसके वजह से भी जो मन करता है हम खाते रहते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी लेजिट पॉइंट विच आई नीड टू फिक्स इन माई सेल्फ। जब भी मन करता था मैं कुछ ऑर्डर कर लेती थी एंड खा लेती थी एंड इट वॉज कन्वीनियंट फॉर मी, एंड so I need to fix that and avoid that, first. Second thing, and third and most important thing, which my parents keep on telling me since I was a teenage: drink plenty of water. पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं ऐसा मेरा हैबिट हो गया है कि मैं ऑफिस में जब वीकडेज में रहती हूँ मैं बहुत पानी पीती हूँ, क्योंकि मेरे डेस्क में मेरा बॉटल रहता है एंड आई जस्ट फिल इट अप। व्हाट इज हैपनिंग इज कि मैं घर में जब रहती हूँ तो मेरे को घर में लाके मतलब मेरे को गुस्सा होता है कि पानी क्यों नहीं पी रही है, ये पानी पीना बहुत ज़रूरी है एंड ऑल। तो मेरा वो हैबिट आई गेस ऑफिस में हो गया कि मैं पानी कंसिस्टेंटली पी रही हूँ, बिकॉज पानी पीना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ अ मोस्ट बेसिक थिंग बट इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड फोर्थ इज eating meals before 8 or 9. अगर भी आपका शिफ्ट I'm talking about the everyone who is in the day shift, अगर आप by 8 or 9 आ रहे हो तो तभी इधर कर लो डिनर या फिर कुछ खा लो, क्योंकि उसके बाद जाके लेट मेरा डिनर 11 बजे 10 बजे 10:30 बजे होता था, जिसकी वजह से ना मैं सुबह उठ पाती थी क्योंकि रात को मुझे बहुत ही हैवी लगता था इतना लेट खाने से। एंड रात को जो बोलते हैं कि पूरा कम खाओ, पूरा ना खाओ तो मैं एडवाइस नहीं करूँगी, क्योंकि किसका बॉडी क्या है वी डोंट नो, बट जितना हो सके कम खाओ, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि वो वर्क करता है ज़्यादा कम खाने से रात को, ताकि आपका मतलब पेट थोड़ा हल्का रहता है एंड सुबह आप उठ पाते हो और बाकी सारी चीज़ें भी कर पाते हो। So these are the few basic things which I'm following now, and eventually I'll be figuring out more and more, and will be taking some advices from everyone, like how I can make the process more faster. Because what is important is not just losing all of your weight and gaining it again, which I've been telling in I guess in all of my videos, क्योंकि मैंने वो करके देख लिया है कि मैं एक बार पूरा पतली हुई थी, फिर मोटी हो गई, फिर मैं पतली होने वाली हूँ या फिर होने के प्रोसेस में हूँ। सो अब मैं होना चाहती हूँ, अब मैं उसको फिर से रिवर्स मोटा नहीं करना चाहती हूँ। दैट इज़ माई मेन कंसर्न। एंड इस चीज़ में हर चीज़ जो मेरी लाइफ में इन्वॉल्व है, या फिर इधर इट्स माई जॉब और माई बिजनेस, एवरीथिंग आई नीड टू फिक्स दैट साइमल्टेनियसली. So that's it. I guess that's it for something which I wanted to share being a corporate employee. And if the viewers who are watching are also corporate employees, do share your routines, do share your habits, which will help me as well as others to balance the work and the diet and the health simultaneously. So I hope the videos you have been enjoying, and don't forget to like, share and subscribe if you love my videos. And I'll be getting more such videos and interesting topics on which we can talk and share our views. So stay tuned for the next videos.